Student, so today we are going to study electric field. Electric field. So, what is electric field? And what is the strength of electric field? So first, to understand the electric field, first assume a situation in which there is a charge. So this charge creates its something. What is the something? That something must be known as electric field, but we discuss in 2 or 3 minutes later. So this charge establishes its influence in the surrounding or in the space where it is lying. What is the influence established by this charge? So how we identify there is an influence of presence of this charge in the space. So we take a specified region of space. We take a space region. In this space, if we put any another charge Q, this charge must experience a force in definite direction due to presence of this charge. So in this space, now we forget this charge. Suppose this is the space. So in this space, if any charge is put here, then this charge experience a force in definite direction. So we say this space has a property. This space has a property to experience a force in definite direction. In place of charge, if we put a mass m0, then this mass does not experience this type of property, this type of force. If we put any neutral body here, Q is equal to 0, any neutral body here, then this body does not experience any force in this space. So it is concluded here that if a charge is placed in the space, then by the property of which this charge will experience a force in definite direction, that property is known as electric field. So if this property is experienced by a charge, this property is known as electric field. If a force is experienced by the property of mass, then this field is known as gravitational field. If this property is experienced by a magnet, then the field is known as magnetic field. So in this way, what property, so how we can analyze? So we analyze if there is a property in this space. By that property, any charge in this space experience a force in definite direction. That property of space is known as electric field. But how this property comes here? This property must comes here by any another charge. So that any charge who has established this property in the space is known as source charge. So source charge is the charge that establishes electric field in the space. So this property is known as electric field, but this property must be established by a charge. So that charge is a source charge, and the charge that experiences this property is known as test charge. Test charge. So what is electric field? The electric field is the property of, so we define electric field, the property of a space due to which a charge will experience a force in definite direction. In definite direction. So this property is known as electric field, and this property is established by the factor or by a quantity known as source charge. And this field is analyzed, identified, detected by the charge is known as test charge. So it is here source charge and test charge.
field is established by source charge and identified by the test charge. So this is the property of space, and this property of space exists due to a source charge. So we can say electric field is established by the source charge, or any charge establish its own influence. That influence is known as electric field. So now if a person can ask what is the strength of this electric field at this position, what is the strength of this electric field at this position? So the strength of electric field is determined by a physical quantity. We term this quantity as electric field intensity. Electric field intensity or electric field strength or electric field vector, electric field vector, or simply electric field. Electric field. So there are four words we can use for the electric field intensity. So electric field intensity is the physical quantity that determines the strength of electric field established by a source charge at any position or any point in the space. Understand? So now how we define the electric field intensity at a point? So we consider a source charge Q here. Source charge. We take any point P. The position of P is at a r distance from the source charge. So what is this source charge must establish its electric field, we know. So what will be the strength of electric field established by this source charge at point P? If the point P is changed from P1 to P2, P2 to P3, then the strength must be changed due to the change in position, or it is uniform, it will not change. So we have to analyze or study the situation. So first we find the electric field intensity at any point. So what is electric field intensity? Suppose to find the electric field intensity, we take a test charge here, Q0. So Q0 will experience a force. This is positive, Q0 is positive, so experience a repulsive force F. So this F becomes, from Coulomb's law, 1 upon 4 pi epsilon naught Q and Q0 by R square and R cap, where R cap is the direction of position vector from the source charge towards the position where electric field has to be found. So this is the force experienced by Q0. So if we change the magnitude of Q0, the force must be changed. So we have to find a such quantity which only depends upon this charge, and by changing the value of Q0, that quantity do not affect it. So we define a term F divided by Q0, force per unit charge. 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 by R square R cap and 1 by Q0. Q0 get cancelled out. Now you assume, so this quantity is force per unit charge. In this quantity 1 upon 4 pi epsilon naught is constant, Q is the source charge and R is the distance. So this physical quantity only represent the influence of this charge at this position. So this is the actual strength of this charge. This is the actual strength of field of this charge at this position. So this quantity must be defined as electric field according to the electric field intensity. So this is the electric field at position R. But in the theoretically definition, we define electric field as limit Q0 tends to 0 F by Q0, where this becomes equal to limit Q0 tends to 0 1 by Q0, और F का value 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 by R square R cap. This Q0 get cancelled out, so E becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square R cap.
So this is the electric field. So why we take limit q naught tends to 0? What is the significance of limit q naught tends to 0 in definition of electric field? In place of this formula, we define electric field theoretically by this formula. So what is the difference and why we take this difference? Because q naught is a charge. Suppose q naught is a charge, it is also a test charge. So this is charge, so this also establish its own electric field, and this is the source charge whose electric field has to be determined. So the electric field of source charge get modified by the presence of this test charge. So real strength of electric field of source charge cannot be find out accurately. So in order to find accurately the effect or influence of field of source charge, the test charge should be so small so that it does not modify the field of source charge. So for the reason, if q naught tends to 0, then q naught will be so small so that its field do not modify the field of source charge. Hence we define in theoretical definition or conceptual definition of electric field as electric field is the limit q naught tends to 0 f by q naught. Do you understand? So this is our formula of electric field for a point charge. Now we have to study the superposition principle of electric field. So in electric field here, in the present definition, electric field E given by 1/4 pi epsilon naught q by r square r cap. So first basic question, you have to plot the graph. That means electric field strength versus r पोजीशन ग्राफ फर्स्ट में हम लोग को प्लॉट करना है. तो इसके लिए आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करो. तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डाटा प्लॉट करो r बराबर 0 पे. अब एक ग्राफ यहां पर हम लोग ले रहे हैं. इट इज r इज इक्वल टू 0. इधर r पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव है. r इज 0, r इज इंफिनिटी. r का वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं इस फार्मूला में तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा? इंफिनिटी आएगा और पॉजिटिव आएगा. यानी दिस पॉइंट डज नॉट टच द y एक्सिस, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस. इफ r का वैल्यू इंफिनिटी लेंगे तो यह हो जाएगा 0. दिस डज नॉट चेंज, यहां इंफिनिटी पे टच करेगा. और इसकी प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स स्क्वायर है, सो इट इज द रिप्रेजेंट a parabola, so the graph will be parabolic. So this is the graph when q becomes positive. So we write q greater than 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r ग्राफ इस शेप का. अगर दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r ग्राफ आपको प्लॉट करना है फॉर q लेस देन 0 के लिए, यह हो गया q ग्रेटर देन 0 के लिए. दैट मींस पॉजिटिव चार्ज के लिए और या नेगेटिव चार्ज के लिए. नेगेटिव चार्ज के लिए है, यहाँ q नेगेटिव होगा तो साइन माइनस आ जाएगा. जैसे ही माइनस साइन आएगा r का अपोजिट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. अब पुनः इस फार्मूला में हम लोग r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी आ जाएगा. जैसे r बराबर 0, यहाँ फर्स्ट वाले में देखिए e बिकम्स इंफिनिटी और r का इंफिनिटी लेंगे e बिकम्स 0. लेकिन इस केस में r का वैल्यू 0 डालेंगे तो e बिकम्स माइनस इंफिनिटी और r का वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो e बराबर 0. यानी इस केस में नेगेटिव चार्ज के केस में जो है ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा और यदि e इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर तो यह ग्राफ जो है इस शेप से जाएगा ऐसे. तो इस तरह दिस ग्राफ बिकम्स q इज लेस देन 0 के लिए. तो अगर केवल q ग्रेटर देन 0 के लिए पूछता है तो अप वाला हम लोग प्लॉट करेंगे. केवल q लेस देन 0 के लिए पुट कर पूछता है तो डाउन वाला. अगर दोनों एक साथ पूछता है तो एक साथ दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे. कभी-कभी क्या करता है इसी ग्राफिकल क्वेश्चंस को आपको चेंज करके पूछेगा. इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पूछने का है इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1 by r स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पूछेगा 1 by r स्क्वायर. इसमें भी दो केस होगा. फर्स्ट फॉर q ग्रेटर देन 0 और सेकंड केस हो जाएगा फॉर q लेस देन 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखिए 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर मैग्नीट्यूड है.
इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। तो अगर E को हम लोग y से रिप्लेस करें और इसको एक कांस्टेंट m से रिप्लेस करें और इसको x से रिप्लेस करें तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस कम्स ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो जो ग्राफ 1 बाई आर स्क्वायर का बनेगा वह स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम लोग दर्शाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे और x एक्सिस पे 1 बाई आर स्क्वायर को हम लोग डिनोट किए 1 बाई आर स्क्वायर। अब 1 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ आर स्क्वायर 0 नहीं डाले हैं, 1 बाई आर स्क्वायर दिस होल वैल्यू इज 0। सो 1 बाई आर स्क्वायर यह 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, इट बिकम्स 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन का हमारा c जो है इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो m बिकम्स इक्वल टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिकम्स m एंड c बिकम्स 0। c बिकम 0 तो स्ट्रेट लाइन पास कहां से करेगा, ओरिजिन से, और इसका q पॉजिटिव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ ए भी पॉजिटिव है तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा, tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, इससे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इस तरह से हैविंग सम स्लोप tan थीटा वेयर tan थीटा इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये स्लोप पॉजिटिव होगा इसलिए थीटा का वैल्यू 90 से कम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को एक ग्राफ हो गया आपका फॉर q ग्रेटर देन 0 के लिए यानी फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम लोग दूसरा ग्राफ इसी में पढ़ेंगे फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ देखिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए दैट मींस q लेस देन 0 के लिए, q लेस देन 0 के लिए हम लोग पुट करेंगे या नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ साइन केवल नेगेटिव आ जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा आपको ये नेगेटिव, तो mx प्लस c और m का वैल्यू जो है यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और c का वैल्यू अगेन 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं m नेगेटिव है तो tan थीटा नेगेटिव होगा यानी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और c का वैल्यू 0 है तो यह ग्राफ भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जैसे ही यह ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा सेकंड क्वेश्चन है तो यह ग्राफ का शेप जो है इस ढंग का हो जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा देखिए नेगेटिव कैसे आ रहा है, तो हम लोग 1 बाई आर स्क्वायर के पैरेलल लाइन लिए और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा लेते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव होगा और ये tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन। सो दिस इज द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब हम लोग इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट एडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी So next topic is superposition principle of electric field. Superposition principle of electric field. जैसे मान लो कि स्पेस में यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पर तीसरा चार्ज है Q3 और एक लास्ट चार्ज ले लेते हैं Qn। बीच में बहुत सारे चार्ज हैं तो Q3 को Q डॉट मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा n चार्ज को दर्शाने के लिए। अब इस सभी चार्ज के कारण जो है सिस्टम ऑफ चार्जेज हो गए, इस सभी चार्ज के कारण हम लोग जो है इस पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो P पॉइंट का Q1 से जो डिस्टेंस है यह है R1P। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं Q1 का फील्ड निकालना है P पॉइंट पे और P पॉइंट पे हमारा Q0 चार्ज होगा यानी कि टेस्ट चार्ज होगा और टेस्ट चार्ज जनरली कैलकुलेशन के लिए +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इस कारण से Q1 का फील्ड निकालना है तो Q1 की प्रायोरिटी ज्यादा हो गया, पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस होगा उसकी प्रायोरिटी कम है, इसलिए फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो हम लोग नोट करेंगे वह जिसका फील्ड निकालना है तो R1 और सेकंड सबस्क्रिप्ट हो जाएगा जिस पॉइंट पे निकालना है
उसी तरह Q2 का देखिए, तो Q2 के कारण जो फील्ड होगा Q2, या देखिए Q2 का हो गया फील्ड, Q2 का जो डिस्टेंस हो गया R2P हो गया। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो +1 यूनिट चार्ज यहाँ प्लेस करो। Q1 के कारण या पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिपल्सिव आएगा, यह हो गया E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब ये दोनों का दोनों, इस E1 को E1P भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज एट P, यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जिसका फील्ड होगा, सेकंड सबस्क्रिप्ट जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा। जनरली जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो फिक्स होता है, इसलिए सेकंड सबस्क्रिप्ट इज नॉट नेसेसरी टू बी रिटेन बट यू कैन राइट। सो ये दो फील्ड हो गए Q1 और Q2 का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so these two will be added according to the parallelogram law of vector addition। तो पैरेललोग्राम इस दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके बना दीजिए पैरेललोग्राम, अगर आपको यहां तक दिख रहा है तो। so this becomes the electric field due to Q1 and Q2 charge, so this becomes E12, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 and Q2। अब देखिए Q डॉट, इसके साथ Q डॉट का फील्ड लेना है, तो Q डॉट पॉजिटिव या +1 Q डॉट के कारण इस डायरेक्शन में, तो इस फील्ड को हम लोग E डॉट मान लेंगे। अब जो Q1 Q2 का जो रिजल्टेंट है E12, उसके साथ E डॉट का जो फील्ड है, मतलब Q डॉट का जो फील्ड है वो ऐड होगा, और यह ऐड भी वेक्टर लॉ से होगा। तो फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, और फिर E डॉट के पैरेलल यहां से लाइन हम लोग ले लेंगे, E डॉट के पैरेलल, फिर इस लाइन के पैरेलल यहां से लाइन ले लेंगे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो यह हो गया रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे E12 डॉट, E12 डॉट, दो का रिजल्टेंट आ गया, तो E12 और डॉट का, यानी कि तीन चार्ज के कारण फील्ड का यह सम आ गया। अब हमारे पास बच गया कौन सा, Qn, तो अब Qn को देखिए, Qn के कारण जो डिस्टेंस होगा इसको Rnp मान लेंगे, Rnp, और इस डिस्टेंस को आप क्या माने थे, R डॉट P मान लीजिए। अब जो है Qn का फील्ड लीजिए, तो यह हो गया Qn का फील्ड। अब Qn का फील्ड हो जाएगा En, अब यह En ऐड होगा E12 डॉट के साथ। अब इस दोनों को एडजेसेंट साइड मान लेंगे हम लोग फिर, और एडजेसेंट साइड मान करके फिर जो है इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इस तरह 3 डायमेंशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो इसको ER और P से डिनोट करेंगे, ERP, या केवल ER भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at that point due to each and every charge present in the system। हमारे सिस्टम में जितने चार्ज है सभी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम होगा वही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन हो गए, बट दे डू नॉट कंबाइन अलजेब्रिकली, दे कंबाइन वेक्टोरियली। सो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए देखिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ERP इज इक्वल टू फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1P या केवल E1, सेकंड के कारण E2 प्लस डॉट डॉट E डॉट, और फिर हमारा लास्ट के कारण En। अब वैल्यू सबका पुट कीजिए, जो एक चार्ज का, एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड जो हम लोग डिफाइन किए हैं उसका यूज करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है R1P स्क्वायर लिख सकते हो, और डायरेक्शन R1P कैप। यहाँ पर देखिएगा पहला सबस्क्रिप्ट जो है जहां पे चार्ज है, और चार्ज के लिए यूज करेंगे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है पॉइंट के लिए यूज करेंगे, और डायरेक्शन जो होगा वो चार्ज से पॉइंट की ओर होगा। अगर यह चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ साइन माइनस हो जाता, माइनस R1P यूज करते या P1 कैप यूज करते। यहाँ डायरेक्शन फर्स्ट से सेकंड की ओर होगा, यानी डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम
फर्स्ट सबस्क्रिप्ट टू सेकेंड सबस्क्रिप्ट। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में जो होगा उससे सेकेंड सबस्क्रिप्ट की ओर डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। तो ये जो है डायरेक्शन को समझने के लिए। अब इसके बाद जो है आप देखिए E2 का वैल्यू लिखिए। तो 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2P स्क्वायर R2P कैप। यहाँ पे आप केवल R2 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी R2 कैप लिख सकते हैं। प्लस डॉट 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 E0 को लिखिए 1/4πε0 Q डॉट डिवाइडेड बाई R डॉट P स्क्वायर R डॉट P कैप प्लस En को लिखिए 1/4πε0 Qn डिवाइडेड बाई Rnp स्क्वायर Rnp कैप। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो ERP becomes equal to समेशन ओवर। अब आप कांस्टेंट को समेशन के अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। 1/4πε0 यहाँ देखिए फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 1 1 1, सेकंड तो हमेशा P रहेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 2 2 और यहाँ देखिए डॉट 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 और यहाँ N N N। इस तरह जो है फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है वही हमारा चार्ज को बतलाता है कि किसके फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, इस चार्ज का। इसलिए फर्स्ट जो है सबस्क्रिप्ट बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को I डिवाइडेड बाई RIP स्क्वायर RIP कैप और I का वैल्यू 1 2 1 डालेंगे तो Q1 R1P स्क्वायर R1P कैप फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। I का वैल्यू 1 के बाद 2 डालेंगे तो Q2 R2P स्क्वायर R2P कैप यह मिल जाएगा। यह 1/4πε0 कांस्टेंट है। इसी तरह n डालेंगे तो लास्ट टर्म मिलेगा 1/4πε0 Qn Q Rnp स्क्वायर Rnp कैप। तो I varies from 1 to n। So this is the resultant expression या final expression of superposition principle। तो इस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लैंग्वेज में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि according to superposition principle the resultant electric field at a point is the vector sum of electric fields at that point due to each and every charge present in the system or configuration। तो इसका लैंग्वेज भी आप नोट कर लीजिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का लैंग्वेज पहले आप नोट करेंगे एग्जाम में, उसके बाद इसका डेरिवेशन फार्मूला यूज करेंगे एसपीपी का और तब उसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ राइट साइड में डायग्राम बनाएंगे और एक फाइनल स्टेटमेंट पुट करेंगे। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको इसी प्रिंसिपल पे बनाना है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग लिखेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या एसपीपी का पोजीशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, any से अच्छा a at a point is the vector sum of इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख के फील्ड्स लिखिएगा क्योंकि एक चार्ज का नहीं निकाल रहे हैं, एक से अधिक चार्ज का निकाल रहे हैं। वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। अब ये नहीं कि Q1 का R1 डिस्टेंस के पॉइंट पे निकाल लिए, Q2 का R2 डिस्टेंस के पॉइंट पे निकाल लिए, Q3 का किसी अदर पॉइंट पे निकाल लिया, ऐसा नहीं करना। सबका सेम पॉइंट पर निकालना है, डिस्टेंस भले ही वैरी करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट, सेम पॉइंट पे निकालना है। इज द at that point due to each and every charge present in the system। present in the system। सिस्टम में जितने चार्ज प्रेजेंट है उस सभी के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। So this is the resultant superposition principle of electric field। अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और नेक्स्ट एक टॉपिक और आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है।
अब एक टॉपिक और आपको यहाँ से पढ़ करके आना है घर से, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई चार्ज हमारा फील्ड स्टेब्लिश किया तो वो फील्ड हमें विजुअल होगा या विजुअल नहीं होगा, इस बात को हम लोग को जानना है। उसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि इस स्पेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब यहाँ कोई क्यू नॉट चार्ज डालेंगे तो इस क्यू नॉट चार्ज पे कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगेगा, इसका अपना फील्ड होगा, बट यह किसी दूसरे के फील्ड में नहीं है। सो देयर इज नो एनी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस क्यू नॉट चार्ज। लेकिन इसी क्यू नॉट चार्ज को अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से स्पेस में प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है हम लोग किसी क्यू नॉट चार्ज को डाल देते हैं, तो अगर यह चार्ज पॉजिटिव है देन दिस एक्सपीरियंस ए फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एंड अगर यह चार्ज नेगेटिव है, जैसे मान लो यहाँ चार्ज ले लेते हैं -q, नेगेटिव चार्ज -q नॉट, देन दिस चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर फोर्स निकालना हो चार्ज पे तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड F इज इक्वल टू, अगर यह q नॉट पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में और q नॉट नेगेटिव है तो -q इनटू E, नेगेटिव है तो माइनस साइन बताएगा कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसका मतलब है पहला जो फील्ड का सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस यह है कि किसी भी चार्ज को अगर फील्ड में हम लोग प्लेस करेंगे तो चार्ज मस्ट बी एक्सपीरियंस ए फोर्स। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका सिग्निफिकेंस, ये तो पहला सिग्निफिकेंस हो गया कि एनी चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो फील्ड के डायरेक्शन में हो या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो। कभी कभी जो है अब आप यह सोचेंगे कि देखिए चार्ज जो है इसी डायरेक्शन में डाल दिए, मान लो कि फील्ड वर्टिकली डालेंगे तब क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वर्टिकली ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली, और तब यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को डाल दिए, तो यहाँ पर भी क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और क्यू नॉट चार्ज अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि फील्ड अगर है चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में हो, एनी चार्ज प्लेस्ड इन ए फील्ड मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग डाल देते हैं या कोई मॉलिक्यूल डालते हैं जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, जो जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही जान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। सो मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो ऑर्बिट में स्प्रेड होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज इस तरह ऑर्बिट में सिमेट्रिकली एस्टेब्लिश होंगे। तो सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट अगर आप यूज करें तो उसके तरह इस सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां पर पाया जाएगा, तो एक बीच में पाया जाएगा सेंटर पे, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो यह सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी यही पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर सेम पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए नेट या बॉडी जो है इसमें कोई भी डाइपोलरिटी डेवलप नहीं होगा और यह न्यूट्रल बॉडी होगा। अब इसी बॉडी पर हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मॉलिक्यूल को डाल दिए, मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मॉलिक्यूल को डाले हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसको फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वह फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा स्लाइटली प्लस, और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा माइनस, जिसके कारण दोनों के बीच एक स्पेसिंग डेवलप हो जाएगा। इस स्पेसिंग के कारण यह जो है स्ट्रेच्ड हो जाएगा मॉलिक्यूलर शेप, और यह इस तरह का शेप बन जाएगा। इस स्ट्रेचिंग फेनोमेना को पोलराइजेशन बोलेंगे और इसको डाइपोल बोलते हैं। अब यह जो मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल था, यह न्यूट्रल से डाइपोल कंसिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकली यह डाइपोल है। बाद बाकी इसका एटम की प्रॉपर्टी और कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो जानने की जरूरी नहीं है। चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज जो इस मटेरियल बॉडी में है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोग को कंसीडर करना है।
तो ये जो इफेक्ट हो गया पॉजिटिव निगेटिव में सेपरेशन, अब इसके कारण जब इस मॉलिक्यूल को फील्ड से किसी ओरिएंटेशन पे प्लेस किया गया, जैसे मान लो इसको ऐसे रोटेट करा के ऐसे हम लोग प्लेस कर दिए इस ओरिएंटेशन पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, यहाँ निगेटिव चार्ज का सेंटर। अब पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया और निगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब यह पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस किया तो यह इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। अब आप इसको देखिए इस तरह से कि यहाँ पर अगर हम लोग एक बॉडी ले लेते हैं, इस पे फोर्स इधर है, इस पर तो ये दोनों फोर्स इक्वल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, चार्ज जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू है, तो यह फोर्स और यह फोर्स दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में अपोजिट होगा और दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को फोर्स ऑफ कपल या कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। और इसका टॉर्क जो होगा ये क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज, जिसके कारण ये बॉडी जो है इस पर देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है पॉजिटिव, इस फोर्स निगेटिव चार्ज का, और यह इस तरह रोटेट करेगा। इस तरह यह हमारा मॉलिक्यूल जो है रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जब किसी डाइपोल को या डाइपोलर मॉलिक्यूल को या पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो दैट स्टार्ट रोटेशनल मोशन एंड टेंड्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा सिग्निफिकेंस है। और दो चार सिग्निफिकेंस आप पढ़ करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, सो हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे फ्रॉम टाइप 1 TO2 टाइप 5 तक न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप जो है इसको रिवाइज करके आएंगे।